اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے انگلش کا ہاؤ ٹو امپروو یور ووکیبلری۔ اپنی ووکیبلری کو آپ نے کیسے امپروو کرنا ہے، وہ کون سی ٹرکس ہیں جس کی وجہ سے آپ مشکل سے مشکل ورڈز کی آپ نے ووکیبلری آپ نے بنانی ہے، آپ نے اس کو معلوم کرنا ہے۔ کیونکہ ووکیبلری کے جو ایمسیکیوز ہوتی ہیں، کویسچن ہوتے ہیں، وہ نارملی CSS میں جو سینٹرل سپیریئر ٹیسٹ ہوتے ہیں، PMS میں جو پروفیشنل سپیریئر ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ایجوکیشنل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آلموسٹ ہر جگہ پہ اس کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس کو نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ووکیبلری ایک بہت کیا ہے مشکل جو کیا ہے وہ کنسیپٹ ہوتا ہے۔ اپنے ووکیبلری کو آپ نے کیسے بلڈ اپ کرنا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دیکھیے، میں نے کچھ ورڈز لکھے ہیں، ان کی ووکیبلری کو ہم نے معلوم کرنا ہے، ان کی میننگز کو ہم نے معلوم کرنا ہے، لیکن ووکیبلری کے لیے آپ نے پورے ورڈز میں سے آپ نے ایک چھوٹا سا حصہ جس کی میننگ آپ کو پتہ ہو، وہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر آپ اس پوری ورڈز کی میننگ کو آپ معلوم کر سکتے ہو۔ تو وہ ٹرکس کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس برنچ۔ کیا ورڈز ہے؟ برنچ۔ دیکھیے، برنچ کس کو کہتے ہیں؟ برنچ کا ورڈ جو ہے بریک فاسٹ، اس چیز کا بریک فاسٹ پلس لنچ، ان دونوں کے کمبینیشن سے یہ ورڈز بنا ہے برنچ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کھانا جو نہ تو آپ کا بریک فاسٹ ہو نہ آپ کا لنچ ہو، صحیح، تو وہ اس کھانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برنچ کہتے ہیں۔ وہ کھانا جو نہ تو آپ کا بریک فاسٹ ہو اور نہ آپ کا لنچ ہو، تو اس قسم کے کھانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برنچ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ کنسیپٹ چیک کر لیا؟ BR سے کیا آتا ہے؟ بریک فاسٹ، UN سے کیا آتا ہے؟ لنچ آتا ہے۔ مطلب وہ اپنی ٹرکس آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ اب اس ورڈ کو دیکھیے، ویجنس۔ کون سا ورڈ ہے؟ ویجنس ورڈ ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں ویجنس کا ورڈ جو ہے، اگر آپ اس کے ساتھ R لگا لیں، RE لگائے تو کیا بن جاتا ہے؟ ریونج بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ریونج بن جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ریونج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ لینا۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ بدلہ لینا۔ ریونج کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بدلہ لینا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ایک ورڈ اے ورڈ کا اضافہ کر لیں تو کیا بن جاتا ہے؟ ایونج بن جاتا ہے۔ اور ایونج کی معنی بھی ہوتا ہے بدلہ لینا۔ بدلہ لینا، صحیح؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویجنس کا معنی کیا ہے؟ بدلہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بدلہ۔ اب اس ویجنس کا معنی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا معنی ہے بدلہ، صحیح؟ لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ ریونج اور ایونج میں کیا فرق ہے، تو یاد رہے ریونج جو ہے بدلہ لینا ہے، لیکن اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے، اگر کسی کے ساتھ آپ کی ذاتی دشمنی ہے اس سے آپ بدلہ لیتے ہو تو اس کو ریونج کہتے ہیں۔ اور ایونج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انگلش کی ایک مووی بھی ہے ایونج، صحیح؟ تو ایونج کا مطلب یہ ہے آپ بدلہ لیتے ہو لیکن کسی جو ہے انصاف کے لیے آپ کسی سے بدلہ لیتے ہو تو اس کو کہتے ہیں ایونج کہتے ہیں۔ تو ان دونوں ورڈ سے ہمارے پاس ویجنس کا میننگ پتہ چل گیا۔ نیکسٹ ورڈ ہے بیف اپ۔ بیف اپ۔ اب دیکھیں، بیف کا ورڈ آپ کو پتہ ہے، بیف پلاؤ۔ بیف کا ورڈ میں بیف کا بیسیکلی مطلب ہے گوشت، اور گوشت آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے؟ اب کا مطلب ہے بڑھانا، اپنے گوشت کو بڑھانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے مسل کو کیا کرنا ہے؟ بلڈ کرنا ہے۔ اپنے مسل کو کیا کرنا ہے؟ بلڈ اپ کرنا ہے، صحیح؟ تو اپنے مسل کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، کسی بھی چیز کو مضبوط بنانا چاہتے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں بیف اپ کہتے ہیں۔ بیف اپ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسٹرانگ،
अगर आप किसी भी चीज़ को मजबूत बनाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आप वर्ड कौन सा यूज़ करोगे? बीफ आप यूज़ करोगे। सही है? यहाँ से पता चलता है अपने गोश्त को बढ़ाना, किसी मसल को बढ़ाना, अपनी किसी चीज़ को बढ़ाना, सही है? चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे आपके मसल्स वगैरह हो, तो उसको कहते हैं बीफ अप। और बीफ का वर्ड जो है गोश्त से निकला है, आपका मतलब है ऊपर। इस वर्ड्स को देख लिए इंट्रोस्पेक्शन। अब देखिए इंट्रोस्पेक्शन जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इंट्रो एंड स्पेक्शन। इंट्रो का वर्ड है विदिन, इंट्रो वर्ड्स का मीनिंग क्या है? विद इन, अंदर। और स्पेक्शन वर्ड जो है आपको पता है इंस्पेक्शन से निकला है। किस चीज़ से निकला है? इंस्पेक्शन से निकला है। मुआयना करना, क्या किस चीज़ को कहते हैं? मुआयना। तो इसका मतलब ये हुआ अपने आप की मुआयना करने को हम यहाँ पे इसको मीनिंग लिख सकते हैं सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट मीनिंग भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या मीनिंग इसको लिखते हैं? सेल्फ असेसमेंट। अगर आप खुद के मुआयना करते हो, खुद का आप जो है मुआयना लिखते हो, तो उसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइड। साइड का वर्ड जो है इसका मतलब ये हुआ मारना, किसी को मारना। साइड का वर्ड क्या है? किसी को मारना। अगर आपको पता नहीं है कि साइड का वर्ड क्या है, आर्ट ऑफ किलिंग, किसी को मारना, अगर आपको ये पता नहीं है कि साइड का मीनिंग क्या है, तो आप जो एक सोचे इसके बारे में कि ये वर्ड कहाँ पे यूज़ हुआ है, कौन सी बड़ी वर्ड का पार्ट है, तो आपको मालूम हो जाएगा सुसाइड एक ऐसा वर्ड है जो नॉर्मली हर जगह पे यूज़ होता है। आजकल हर अखबार में इसको जिक्र आता है। सुसाइड, सू का मतलब ये हुआ अपने आप को, साइड का मतलब है मारना। सू का मतलब ये है सिर्फ अपने आप को मारना, तो उसको कहते हैं सुसाइड कहते हैं। इसको कहते हैं सुसाइड कहते हैं। इस तरह अगर कोई आपसे कहे कि पेट्रीसाइड, कौन सा वर्ड है? पेट्रीसाइड। तो पेट्री का वर्ड जो है पेरेंट से निकला है, और साइड का वर्ड क्या है? मारना। मिसाल के तौर पर अपने पेरेंट को मारने को क्या कहते हैं? पेट्रीसाइड कहते हैं। इस तरह एक और वर्ड है, नॉर्मल ये वर्ड आपको हर जगह पे मिलेगा, जर्मिसाइड। जर्मिसाइड, जर्मिसाइड का क्या मतलब है? जर्म्स का वर्ड जो है जरासीम से निकला है, साइड का मतलब है मारना। जरासीम को मारने को हम क्या कहते हैं? जर्मिसाइड। और नॉर्मली जब हम जरासीम को मारते हैं तो हम डिटोल सोप वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं जर्मिसाइड कहते हैं। इन चीज़ को हम क्या कहते हैं? जर्मिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है लेक लस्टर। लेक का मानी है कमी, लस्टर आपको पता है शाइनिंग को कहते हैं। मतलब ये है कि जिसमें चमक ना हो, जिसमें शाइनिंग ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं डल। जो नाकारा हो तो उसको हम कहते हैं लेक लस्टर कहते हैं। वो जो क्या हो? नाकारा हो। वो क्या हो? जो नाकारा हो, तो उसको हम कह सकते हैं लेक लस्टर, हम उसको कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन है ओमनी पोटेंट को कहते हैं। ओमनी पोटेंट को कहते हैं। ओमनी पोटेंट को कहते हैं। ओमनी का वर्ड जो है किस चीज़ से निकला है? अगर आपको पता ना हो कि ओमनी किस को कहते हैं, ओमनी को कहते हैं आग। ओमनी किस को कहते हैं? आग को कहते हैं, तमाम, सब को कहते हैं। सही। अगर आपको पता है कि ओमनी का वर्ड कहाँ यूज हुआ है, आपने ये वर्ड सुना होगा। ओमनी का वर्ड जो है ओमनियोर्स से निकला है। ओमनियोर्स। ओमनियोर्स क्या होते हैं? वो जानवर होते हैं जो तमाम खुराक खाते हो, सब खाते हो, जिसमें गोश्त भी आता है, जिसमें आपके सब्जी भी आती है। तो ओमनी का वर्ड से है आल, और वर्ड्स का मतलब क्या है? फूड। जो सब कुछ खाता हो तो उसको कहते हैं ओमनियोर्स। तो इसका मतलब है ओमनी का वर्ड क्या है? आल। और पोटेंट का मतलब क्या है? पोटेंट का मतलब ये है सलाहियत को कहते हैं, ताकत को कहते हैं, पावर को कहते हैं। पोटेंशियल से ये वर्ड निकला है। किस चीज़ से ये वर्ड निकला है? पोटेंशियल से ये वर्ड निकला है, तो उसको कहते हैं ओमनी पोटेंट। इस तरह एक और वर्ड है ओमनी से रिलेटेड, ओमनी सेंट। तो ओमनी सेंट का मतलब ये है, ओमनी का वर्ड जो है इसका मतलब ये आल, और सेंट का वर्ड जो है आपको पता है साइंस से निकला है। तो साइंस का वर्ड मीनिंग क्या है? नॉलेज।
मतलब ये है कि वो जिसके बारे में सबको इल्म हो, तमाम जिसके बारे में इल्म सबको इल्म हो, आल नॉलेज को हम कहते हैं ओमनीसेंट कहते हैं। वो शख्स जिसके बारे में तमाम मालूमात हो तो उसको कहते हैं ओमनीसेंट कहते हैं। तो ओमनीपोटेंट का क्या मतलब है? जिसके पास तमाम पावर हो, पोटेंशियल से वर्ड निकला है तो उसको कहते हैं ओमनीपोटेंट कहते हैं। अच्छा, सिंपैथी का वर्ड अगर आपको पता हो, इसका मीनिंग है हमदर्दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पिथी वर्ड जो है, पिथी, इसका मीनिंग होता है हमदर्दी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? हमदर्दी। चाहे वो एम्पैथी, इसका भी मीनिंग क्या है? हमदर्दी। सही है। सिंपैथी, सही है। तो इस तरह के वर्ड्स जो है उसको हम कहते हैं हमदर्दी कहते हैं। पिथी से वर्ड निकला है तो इसका मतलब ये है हमदर्दी। स्केर्सिटी का क्या मतलब है? स्केर का मतलब ये है दाग। स्केर का वर्ड मीनिंग क्या है? दाग। सिटी का मतलब क्या है? शहर। क्या मतलब हुआ? शहर पे दाग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कमी। जिस चीज़ में वो शहर में जिस चीज़ की कमी हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? दाग है उस शहर पे। ये तो उसको कहते हैं स्कैरसिटी। अब मिसाल में के लिए हमारे जो गांव है उसमें पानी की बहुत कमी है तो इसका मतलब ये है कि हमारे गांव में स्कैरसिटी ऑफ वाटर है। एक दाग है हमारे गांव में कि पानी की वहाँ पे कमी है। तो हम लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन आवर विलेज। हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है। लास्ट वर्ड है एंडोमेटेबल। एबल का वर्ड मीनिंग क्या है? काबिल। डोमिनेटेबल का मतलब है डोमिनेट से निकला है। किस चीज़ से निकला है? डोमिनेट। डोमिनेट का मानी है हावी। सब हर चीज़ पे आप जो है काबिज हो तो उसको कहते हैं हावी कहते हैं। इनका मतलब क्या है? अपोजिट है नॉट। इनका मतलब क्या है? अपोजिट में यहाँ पे मीनिंग इसका है नॉट। मतलब ये हुआ कि वो जो सब चीज़ पर हावी ना हो, वो जो सब चीज़ पर हावी ना हो तो उसको हम कहते हैं एंडोमिटेबल कहते हैं। तो सही है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई तो आप जो है वोकेबलरी के साथ रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस से आप लोग भी फ़ायदा उठा सकें और आप लोगों के साथ साथ बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।